अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, शो का आगाज़ करेंगे एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज से, जहाँ एक फैमिली अपने चश्मो चिराग को पहली बार परदेस रुखसत करने आई है। ओहो मैं किला जमीन का वेच दिता है मुंडा बाहर भेजन वास्ते तो तुसी विच रोण पिटन पा दिता है। वीरे रब सोने दे हवाले, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, घबरावे ना मेरा वीर। बाजी अब्बा तो चाहता मैं ਉਹਦੇ मगरों लै जा, तू ही अपनी मरी मां की निशानी दूर करना चाहनी पुत मां की निशानी का हल है साडे कोल है। अब्बा दूसरा विआह कर ली। ओ नहीं पुत, जदों भैन तेरी नूं मां की निशानी वेखण दा दिल करना है मैं इनू शीशा विखा देना है। और यार काम्या, तेरे घर वाले तेरे मुस्तकबिल वास्ते ही सब कुछ कर रहे ने। केड़ा यार मुस्तकबिल जेड़ा इत्थे नहीं बन सकदा यार। और यार इत्थे तू केड़ा असिस्टेंट कमिश्नर लगा है? ते उत्थे मैं केड़ा डीसी लगना जाके, उत्थे भी इट्टां ही चुकनी है मैं। टेलीफोन रोज करना जी ना, इहो जिहियां गल्लां ना कर, मैं नहीं जाना फिर उत्थे। ओ की कहता उन्हें सिर्फ टेलीफोन दे ही किया, केड़ी इट कड मारी है तेनू। लो आ गए दमाद जी साडे। की हाल है पुत? किथे रह गए सो? अब्बा जी इधर बैठो। जहाज 2 घंटे लेट हैगा। हला ते की आंदे कीड़े जहाज वाले? वो कहंदे ने ठहर के टिकटां खोलांगे। तू क्यों नाल आ रही है? कोई जहाज नूं धक्का लाना ही होए। मंसूर मेरा यार जा रहा है दुबई। आहो यार तेरा जान डिया ते कला टुर जाएगा, तू भी नाल हार ले। ते की आंदे कीड़े जहाज वाले? पता नहीं की आंदे आते किधर ने जा। अब्बा जी आदे ने कि 2 घंटे लेट है। ये ते क्यों जहाज भरिया नहीं हले? जहाज ते आवाजां ते लाउण डे आ जाओ बई दुबई वाले आ जाओ, आवाजां लाउण डे आ। हला 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 ओ कुड़िए तू चुप कर, ओ केड़ा कोई जंग ते चले आ जेड़ा रोण डई है। एवी रोई जाण डे, पूरा 1 किला जमीन दा बेचिया इनू बाहर भेजण वास्ते। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਯਾਦ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭੇਜ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਭਾ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਸੀ, ਬੇਵਾ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਬਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਵੇਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਏ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਬਾ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ। ਐਡੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਨਵਈਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਲਈ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਡਿਆ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੇਟ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਘਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ 1 ਕਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। 2 ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੇਟ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਲਓ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਪਾਗਲਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਇਰ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਂਚਰ ਥੋੜਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦਸ਼ਗੁਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਏ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਚਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਇਆ, ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਏਡੇ ਕਾਲੀ ਉਸਲੇ ਬੈਗ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀਆਂ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਏ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਫੋਨ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ,
3 ਕਿੱਲੇ ਟੋਟਲ ਸੀ, ਕਿੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਾਤਾ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਤੇ, ਬਾਕੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਓਏ ਆਹ ਕਦ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ? ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੁਰ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲ ਕੇ ਸੇਕੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਆ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ ਦੱਸਣ ਡੇ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਤੀ ਨਾ। ਆ ਜੀ ਆ। 3 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣ ਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਕਿੱਲੇ। ਹੁਣ 2 ਹੀ ਵੰਡਣਗੇ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ 'ਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ 1.5 ਦੇਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੇਣ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਏ। ਇਹ ਆਹ ਕਦ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਰੋਕਣਾ ਤੈਨੂੰ? ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ 에어ਪੋਰਟ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 에어ਪੋਰਟ ਹੀ ਏ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਏ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਂ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਜੇਨ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਫਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਨੂਸ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। लो मामू पानी ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਪਾਣੀ बाहरों जाके मिले। ਵਸੀਮ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਫਿਰਨ ਦੇ। आहो मामू ठीक फिरन लेने की हो गया है? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪੈਣਾ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ। ओ मामू कुछ नहीं होता, ना घबराया करो। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੀਲਾ अब बोतल खोल, मेरे को नहीं आज खुलनी। खुली है बोतल की करन डे हो? जाके मैनू फोन कर देना। पानी तो पी लेंदे, फोन कर देना पानी तो पी लेंदे। और नंगना कि नहीं अंदर पानी। ਓ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਣ ਡੇ ਆ। ਸਦੀਕ ਸੁੱਖੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਫੜਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹਾਲੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਓਏ। ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਵਸੀਮ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਸੀਮ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਖਲੋਤਾ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ 2 मेरे सामने ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वैसे भाई साहब, आप वाला जो जहाज है वो खड़ा नजर आ रहा है? ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਲਾ ਪਰਾਂ ਖਲੋਤਾ ਏ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਉਹੀ ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਹੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਏ, ਟੁਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਮੁਫਤ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਵਸੀਮ ਦੇ ਅੱਬਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜਹਾਜ਼। ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਿਓ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਲਾ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਓਏ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ओ मामू तुसी एवें घबराण लियो, ये पाकिस्तान है, इत्थे हर दूजी फ्लाइट लेट हो जाती है। ਉਹ ਵਸੀਮ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘਬਰਾਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਭਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਰੀ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਖੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉੜਦਾ ਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਬਾਰੀ, ਉੱਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ? ਜਹਾਜ਼ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਭਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਆ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਏ। ਹਲੋ ਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਕਿੱਲਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। चाचा जी, ये तो बताइए कि जो भी बाहर जाने की ख्वाहिश कर रहा है उसकी नज़र आपके किले पे ही है, आपकी ज़मीन पर ही है। वो कोई पैसे वैसे नहीं जोड़े थे बच्चे को बाहर भेजने के लिए? ਉਹ ਜੋੜੇ ਸਨ ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਮਨਸੂਰ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਏਡੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ? ਉਹਦੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਚੋਂ ਜੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਣ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਲਾਤੇ ਜੀ ਜੋੜੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਰੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੰਜ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਹੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਹੇਜ ਚ ਤੁਹਾਂ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਮੱਝ ਦੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, 2 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 2 ਭਾਂਡੇ, ਜਹੇਜ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ 2 ਭਾਂਡੇ ਸਨ? ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ? ਕਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ 2 ਭਾਂਡੇ। ਲੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਉੱਠੋ ਭਾਜੀ, ਵੇਖੋ ਕਾਦੀ ਦੇਰ ਆ। ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ 에어ਪੋਰਟ? ਲਾਹੌਰ ਉੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ 에어ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੈਲੋ ਜੀਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੁਬਈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚ ਬੈਠਾ। अटेंशन प्लीज, लाहौर से दुबई जाने वाली फ्लाइट परवाज के लिए तैयार है। मोहम्मद अकरम, बलचिराग दिन से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जहाज में पहुंचे। ਜੀਲਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ। ਉੱਠ ਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ। मोहम्मद अकरम, बलचिराग दिन से गुजारिश है कि जल्द अज ਉੱਠ जल्द ਜਾ जहाज में ਪੁੱਤ, पहुंचे। ਮੇਰਾ ਕਿੱਲਾ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਠ ਜਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਤੇ ਵਾਇਆ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਆ ਫੜੋਗਾ, ਲਿਆ ਇਧਰ ਇਧਰ ਆ, ਟੋਰਾਗਾ। ਆਜਾ ਮਾਰਨ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਿੰਡੋਂ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣ ਆਇਆ? ਉੱਠਾਂਗਾ ਉਹ। ਆ ਫੜੋ ਇਹਦਾ, ਆ ਫੜ, ਆ ਬਕਸਾ ਫੜੋ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਵਸੀਮ ਇਧਰ ਆਗਾ, ਉਹ ਅਗਾ ਹੋਗਾ। ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ? ਆ ਕੀ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਆ ਮੁੰਡਿਆ, ਵੇਖ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ। ਆ ਵੇਖ ਵਸੀਮ। 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੀਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਸੂ। ਮਾਮੂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਐ ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਘਰ ਆ। ਓਏ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜੁਰਤ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। 1 ਕਿੱਲਾ ਮੇਰਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚਵਲੇ ਵੇਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਜੀਲਾ ਜੀਲਾ नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। बिल्कुल उसी तरह हुकूमत इस वक्त पाँव बिल्लियों वाला दुम्बा बना हुआ है। या फिर उसी तरह जिस तरह बंदे को पता ही ना हो कि मेरी पार्टी कौन सी है। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਾ ਲਵੋ। ਆਓ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। नाजरीन, सियासी मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। जी फवाद साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपका आपने मदऊ किया है। मैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो बड़ी उदासी हुई थी इनके चेहरे देखने के लिए। अच्छा, तो फवाद साहब ये ज़रा क्लियर कर दीजिए कि आपका इंटरव्यू पीटीआई के कारकुन के तौर पे लिया जाए या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुन के तौर पे लिया जाए, या अभी आप बुखलाहट का शिकार हैं? नहीं, मैं बुखलाहट का शिकार नहीं हूँ फरीद साहब, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। और हुकूमत इस तरह बुखलाहट का शिकार है जैसे किसी बंदे के पीछे पुलिस लगी हो तो वो बुखलाहट का शिकार हो जाता है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਵੋ ਆ ਕੇ।
मेरी बात तो पहले सुन लें। आपको अगर ना अच्छा लगे मेरा बयान तो आप कह दें कि सॉरी। जी चौधरी साहब। ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। अच्छा, आप देखें तो सही ना, जाके इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में टक्कर काट मारी है। इस वक्त तो हुकूमत को खुद पांव बिल्लियां चढ़ी हुई है। जैसे कोई दुम्बा फिरता हुआ किसी किचन में घुस जाए और स्टील के फ्रिज में अपना अक्स देख के तो फ्रिज को टक्कर काट मारता है और दुम्बे को पांव बिल्लियां चढ़ जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह हुकूमत इस वक्त पांव बिल्लियों वाला दुम्बा बना हुआ है। या फिर उसी तरह जिस तरह बंदे को पता ही ना हो कि मेरी पार्टी कौन सी है। यार तुसी इन्हां नूं ही बहाल वो आओ जी बैठ जाओ तुसी। सर बात ही की है, बात यार आप ये फाउल खेल रहे हैं। आपने जिस बंदे को बुलाया इंटरव्यू के लिए आप उसको बात करने दें। जी करें अच्छा चले छोड़े ना फवाद नहीं, साहब। अगर इन्होंने ही बात करनी थी तो आपने मुझे क्यों बुलाया? अच्छा, सॉरी बुरा सॉरी ना साहब माने ना, सॉरी। वो चले कोई बात ये ना समझो कि मैं वजीर नहीं है तो मैं कुछ कहांगा नहीं। सॉरी सर, सॉरी सॉरी चौधरी साहब करो जी। सॉरी सर। फवाद साहब आप उनको छोड़ें, मुझे आप ये बताएं कि आपकी इस बात के मुताबिक इस वक्त हुकूमत को पांव बिल्लियां चढ़ी हुई हैं। जी हाँ, और मैं ये भी आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर अंदर हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं फवाद साहब। ऐसे ही दावे शेख रशीद साहब ने भी किए थे कि सरकार खत्म हो जाएगी। 30 सितंबर की उन्होंने तारीख दी थी। अब आप भी ये दावे कर रहे हैं, मुंह की खानी पड़ेगी आपको। यार अगर आपने मुझे शेख रशीद साहब के साथ ही मिलाना है तो फिर मैं उठ के चला जाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ना, नहीं तो बुरा आप शेख रशीद साहब को बुला लेते ना। नहीं, आपने आपने मुझे बुलाया, आप मेरी बात करें, बीच में शेख रशीद साहब कहाँ से आ गए? भाई दावा आप कर रहे हैं कि 45 दिन में सरकार खत्म हो जाएगी। तो मैं दावा कर रहा हूँ, आप मेरी बात करें ना। अच्छा चलें बात करें, चलें कहिए। मैं ये जो दावा कर रहा हूँ फरीद साहब, इसके पीछे हकायक हैं। अच्छा, हुकूमत 45 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी और वो खत्म होना शुरू हो गई है। मुझे बड़े ठोस जराए से मालूम हुआ है कि एक हुकूमती एमएनए के माली ने इस्तीफा दे दिया है। वो उनको छोड़ के चला गया है और आप अब देखिएगा कि इस्तीफों की लाइन लग जाएगी। अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। फवाद साहब बयान पे बयान दागे जा रहे हैं आप। एक और बयान दाग दिया आपने कि हुकूमत रेत की दीवार है, बस आखिरी धक्का बाकी है। ओ रेत की दीवार। फवाद साहब आपने कभी बताया नहीं कि आप राजमिस्त्रियों का भी काम जानते हैं? आपने जैसी जाहिलाना बात की है, मैं तो इसका जवाब देना भी गवारा नहीं करता। देखें फरीद साहब, ये हुकूमत गिरने वाली है, बस आखिरी धक्का बाकी है। अच्छा, अच्छा जी, पहला धक्का तो हो गया ना वो माली का इस्तीफा, दूसरा धक्का क्या है जी? सारे धक्के मैं ही लब्बा, तुसी कुछ नहीं करना। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਕਾਲੋਬੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਹੈ। फवाद साहब जरा इधर तवज्जो मेरी तरफ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि आप ऐसी हवाई बातें कर रहे हैं, यानी कि सरकार खत्म हो जाएगी, रेत की दीवार है, आखिरी धक्का है। भाई हुकूमत यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, हुकूमत ठीक चल रही है, उनमें कोई अगर दरार है, उनमें कोई परेशानी है वो बताइए। वैसे तो हुकूमत बिल्कुल ठीक है। चलिए आप इनको देख लें, ये बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, देखे ना जरा, इनका उस मेडिकल स्टूडेंट वाला हिसाब है जो 4 साल बायो पढ़ता रहता है और फिर जाके इंजीनियरिंग की क्लास में दाखिला ले लेता है। दूसरी तरफ आप वजीर आला पंजाब को देखें, मोहतरमा को यही अंदाजा नहीं है कि अवाम हुकूमत से कितनी तंग है। कोई एक मिसाल दें। यार किसी की क्या मिसाल दूं मैं, आप बड़ा तंग हूं। भाई ये एक दूसरे को रौंद के आगे बढ़ने की कोशिशों से सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। ये सोच के रखेंगे सबने जाना है। बिल्कुल जी हाँ, इस हवाले से किसी बड़े मारूफ गोरे सियासतदान की एक सेइंग है, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। देखो कितनी देर पहले ये शख्स कैसी अकल वाली बात कर गया है। अब देखें जो हुकूमत के दौर में हमारे यार सज्जन दोस्त थे वो अब नजर भी नहीं आते। फवाद साहब आप भी आजकल पीटीआई के जलसों में नजर नहीं आते, वाबस्तगी किसके साथ है आजकल? फरीद साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस हवाले से तो पाकिस्तान में कानून मौजूद है।
कौन सा कानून? दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, वाजी वाह, वाजी वाह। एस्टैब्लिशमेंट नाल ना होवे ते कर बह जाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा। फवाद साहब, वाह वाह वाह। यानी हम ये समझे कि आप पीटीआई में नहीं हैं। भाई क्यों नहीं, मैं उनके हर जलसे में मौजूद होता हूँ, अच्छा। रूहानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, ऑनलाइन। लो आज पता लगा जे कि ਤੁਹਾਡੀ वजह तो नेट स्लो चलता है। इस बात को समझें कि पाकिस्तान की सियासत जरदारी, बिलावल, शहबाज से बहुत आगे चली गई है। ये लोग पेटी में रखे हुए वो आम हैं जो ज्यादा मसाले की वजह से ढिले हो चुके हैं। फरीद साहब, अब सियासी जमात सिर्फ पीटीआई है। जरदारी और बिलावल कराची में बगैर सिक्योरिटी के निकल नहीं सकते। लोग अंडे मारेंगे इनको। अल्लाह देखिए आप अंडा कितना महंगा है जी, 30 रुपए का है। लो जी, मैनू कसम चुका लो, इन्हें फिर खरीद के रखे जी। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। जी भुट्टो। फवाद साहब, ये अंडे मारने वाला बयान अगर जरदारी साहब ने सुन लिया ना तो फिर वो कभी आपको अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे। ओहो, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अंडे मारेंगे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो लोग इन पर से अंडे मारेंगे। फवाद साहब क्या यू टर्न लिया है। ओ भाई, यू टर्न नहीं लिया, आपने मेरे बयान को सियाको सबाक से हट के तो समझा है। मैंने पहले ये कहा है कि अंडे मारेंगे, उन्होंने अंडे मारेंगे कर लिया है। अच्छा फवाद साहब, ये बताइए कि आजकल मौलाना की क्या पोजीशन है? पीटीआई वालों के साथ कैसी चल रही है उनकी? देखें, मौलाना जो हैं वो इंतहाई समझदार सियासतदान हैं और बड़े जीरक इंसान हैं। मैं तो बस उनको यही गुजारिश करूंगा कि मिलना तो उन्होंने किसी के साथ है ही, मगर वो मजहबी आदमी हैं, नेक आदमी हैं, वो ये समझते हैं और वो जानते हैं कि अगर कोई आदमी बीमार हो या किसी मुश्किल में हो ना जी, उस वक्त उससे दुआ लेना तो वो कबूल हो जाती है। तो उनको इस वक्त पीटीआई की दुआ लेनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। पता नहीं वाकई हम किस मुंह से कहते हैं कि हमारे बच्चे अब बड़े तेज हैं। तेज तो है क्या? 20 साल पहले 5 साल का बच्चा ये स्टेप करता था और अब तो 5 साल के बच्चे बिल्कुल उससे भी छोटे छोटे क्या स्टेप करे। अजीजी, तुम हम सब में से एक बुजुर्ग आदमी हो। लो, पहली गल तो ही झगड़ा हो गया। यार क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, मेरा मतलब है यार, तुम एक ये बात ही गलत कर दी है तुमने। अच्छा यार, मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ अपने भाई। तुम एक नौजवान आदमी हो। ए फिर साडे वालों झगड़ा है। हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम टायर जलाएंगे। आप एक बुजुर्ग को नौजवान कह रहे हैं, आप प्रोग्राम को गलत कर रहे हैं। देखिए आप झूठा प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा यार अजीजी, तुम एक इंसान हो। किसी को इस पे तो इतराज नहीं है। नहीं जी भुट्टो। अच्छा यार, एक बात तो बताओ। जी पूछिए, बतौर इंसान बताऊंगा। यार ये बताओ कि आजकल ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यार ये ईमान से तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है। अच्छा, मैं ये कितनी दफा चाहता हूं कि ये बात करूं, फिर भूल जाता हूं। सोचता हूं भूल जाऊंगा, फिर ये बात भूल जाता हूं। यहाँ का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो खास तौर पे नौजवानों में पैदा हो चुका है कि नौजवान जो हैं हमारे, वो गलत को ठीक और ठीक को गलत समझ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। और फिर जो गलत को ठीक कह रहे हैं उस पे वो बाकायदा पक्के हैं और वो उस पे कोई शर्मिंदा भी नहीं है। बिल्कुल। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है जी। ये सबसे बड़ा गुनाह भी है कि आप किसी गुनाह को सही समझना शुरू हो जाएं, गुनाह को नेकी समझना शुरू हो जाएं। आप देखो ना कि ये कुछ दिन पहले की बात है जिसकी वजह से मैं चाह रहा था कि ये बात करूं
जी जी मैं एक दोस्त की तरफ गया तो मैंने पूछा बच्चों का क्या हाल है, कहता बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह ये वो। अच्छा अच्छा जी, वेरी गुड। तो मैंने कहा कहाँ है वो बेटा? एक बेटा है उनका, एक बेटी। तो कहता है वो बहन को लेने गया हुआ है कॉलेज से। अच्छा। मैंने कहा अच्छा चलो। तो बात कोई और शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद वो बच्चे आ गए। अच्छा हम चूंकि बाहर लॉन में ही बैठे हुए थे, वो गेट खोल के अंदर आया है बहन के साथ बच्चा उसका, तो उसके पास हेलमेट नहीं था, ना उसके सर पे, ना उसके हैंडल पे, ना उसके हाथ में। ठीक है। तो वो आ गया, अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा बेटे तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? कहते वो मेरे पास नहीं है जी, वो है घर रखा हुआ है, बस वो मैं नहीं पहनता, बहन को लेने जाता हूँ अंकल, दोपहर को धूप बड़ी होती है ये वो। तो मैंने कहा तुम्हें फिर पुलिस ने नहीं रोका? ऊपर से और खुश हो के बता रहा है, कहता हम गलियों शलियों में निकल के आ जाते हैं। अच्छा ये तो बात वो कर रहा है, पास से उसकी वालदा क्या कहती हैं, भैन बड़ा तेज है, नहीं फड़िया जाता। मतलब हमने बच्चे की जहानत, बच्चे की तेजी और बच्चे की काबिलियत जो है वो 2 नंबर कामों में डाल दी हुई है। हम ला कानूनियत और बद इखलाकी, इसको हम समझते हैं कि ये बच्चा बड़ा काबिल है। सही बात है। बच्चे की काबिलियत आप देखें ना कि कोई बच्चा बहुत ठा ठा जवाब देता है जी, और वो आप 2 मिनट उसके जवाब सुने अगर बच्चे के, तो आपको फील होना शुरू होगा यार ये तो बद इखलाक है। जवाब देना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अंदाज इसका क्या है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया हुआ है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है हाँ जी कि हम लोग ये तो नारा लगा रहे हैं कि अब नई नस्ल जा गई है, अब नई नस्ल जो है वो उसको बड़ी अवेयरनेस है, अब नई नस्ल जो है वो अब आपके जाल में नहीं फंसेगी, आपके चुंगल में नहीं फंसेगी। हम सियासी हवाले से भी और दूसरे तरीकों से भी, सोशल अपनी लाइफ में भी बच्चों को ये बड़ा डिस्कस करते हैं जी, बच्चे अब बड़े तेज हो गए। मतलब मैं कहता हूँ कि यार ये क्या अक्ल इनको आई है कि एक आज तक कौम में, पहले भी ये 2-3 दफा बात कर चुका हूँ कि ये कौन सी अक्लमंद कौम है जो अभी तक हेलमेट पहनने की आदत नहीं अपने आप को डाल। ये किस तरह की कौम है जो आज तक खुद, नौजवान जो है अगर ये बड़ा जाग गया है, तो कौन सा नौजवान है जो खुद कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा? शादी पे अपने वालदैन को कौन बच्चा खड़ा होकर ये बात कर रहा है कि मामा पापा मैंने जहेज नहीं लेना, आप मेरी शादी कर रहे हैं? सही बात। ये कौन कह रहा है? कोई नहीं। ये कौन सा बच्चा है जो वो कह रहा है कि मामा पापा मेरे जो ससुराल वाले हैं वो इतनी इस्तात नहीं रखते, इसलिए आप 500 बंदे की बारात ना लेके जाएं या 200 बंदे की बारात ना लेके जाएं। हम क्यों नहीं सादगी से शादी कर रहे? क्या बात है। भाई शादियां तो चली गई हैं करोड़ों में, बल्कि अरब में भी गई है। भाई करोड़ों की तो आप सिर्फ अब डेकोरेशन करा रहे हैं। बिल्कुल बात है। अब तो बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं कि मैंने फलां शादी हाल में या फलां जो है मार्की वहां जाके शादी करवानी है अपनी, अगर आपने मेरी करनी है, क्योंकि वो लाहौर की सबसे महंगी और खूबसूरत मार्की है। बिल्कुल वालदैन को इम्तिहानों में डाला हुआ है बच्चों ने। भाई ये कौन से जाग पड़ी है कौम? आप अपना सोशल मीडिया देखें, वहां पे लिखी हुई जो पोस्ट हैं वो जरा देखें, उनके लफ्ज देखें, उनके फिक्रे देखें। क्या कौम जाग गई है या कौम बेहोश हो गई हुई है? भाई अगर कौम जाग गई है तो आपके पास वो अल्फाज कहाँ गए जो इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल किए जाते हैं? बिल्कुल। आप दूसरे मुल्कों की जो कौम जो वाकई जाग रही हैं, कौमें जो सचमुच जाग रही हैं, और जिन जागती कौम तो मैं उसको कहूँगा जो तरक्की याफ्ता है, बिल्कुल जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने एजुकेशन रेट बहुत अच्छा कर लिया अपना, शरह खानदगी जो है लिटरेसी रेट जिनका बहुत अच्छा हो गया है, जिन्होंने कुछ इजाद किया है। सही बात है। भाई अभी तक तो हम दूसरों की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम कल परसों भी शो में जिक्र कर रहे थे कि हमें यही शर्म नहीं आती कि हम हमारे सियासतदानों को प्रोटोकॉल में 7-7, 8-8, 10-10 गाड़ियां लेके जा रहे हैं। हाँ जी बड़े बड़े बंगलों में, हम सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। हमें यही शर्म नहीं आ रही कि लोगों के यही पैसे देने ने तो यही याशी किस गलो कर रहे हैं। हमारा जमीर अभी तक हमें यही नहीं झंझोड़ रहा। उसी तरह हम यही नहीं जज कर रहे कि हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो
बेहूदगी फैलाए हुए हैं, क्या ये जिंदा कौमों की निशानी है? क्या ये जागती हुई कौमों की निशानी है? भाई जो जागती हुई कौमें हैं वो तो ऐसी खूबसूरत पोस्ट देखने को उनकी मिलती हैं जी। कुछ साइंस के हवाले से डिस्कशन हो रही है, हाँ जी। कोई जोग्राफिया के हवाले से डिस्कशन हो रही है, जी। कोई हिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन हो रही है। जी। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है तेरी भैन है जिते तेरी माँ है जिते तू तेरी बेबे ने भी है क्या ते तेरी माँ को पता होगा, ये अल्फाज हम यूज करते हैं। जरा सी कोई फजूल बात कोई ढिल्ली बात कर दे बंदा जी। तो हम उसको डबल होके आते हैं। सही बात है। ये बात अपनी माँ से पूछ, वाह, ये बात अपनी बहन से पूछ, ये हम लिख रहे हैं पोस्टों पे। दुरुस्त बात है। तो ये क्या जागती हुई कौम में है? नहीं दीदी, जागती कौम तो हम हैं। रात को 3-3 बजे तक जागते हैं हम। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कौम के आमाल बताते हैं कि ये जागी हुई कौम है, जी। ये कौम अवेयर हो चुकी है, जी। अब ये हर चीज जानती है। सिर्फ कहने से नहीं ये बात होती। बिल्कुल। पता नहीं वाकई हम किस मुंह से कहते हैं कि हमारे बच्चे अब बड़े तेज हैं। तेज तो है, क्या 20 साल पहले 5 साल का बच्चा ये स्टेप करता था और अब तो 5 साल के बच्चे बल्कि उससे भी छोटे छोटे क्या स्टेप करे। कोई मैं मार गया। अब भाई 20 साल पहले भी ये स्टेप हो जाता था, जब किधरे भूंड पजामे च वड़ जाता ही ते सारा स्टेप होता यार एक मर्तबा मेरी कमीज के अंदर शहद की मक्खी घुस गई थी। मैंने इस वजूद के साथ 10 मिनट ब्रेक डांस किया था। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ड्रामे का नाम भी बताऊंगा और उस मोशन का भी ओ यार सेगमेंट टाइम कम है यार, बताओ यार। यार बता रहा हूँ अब अब बता दो ना ये क्या क्या कर रहे हो। सेगमेंट का नाम भी बताऊंगा और ड्रामे का नाम। जी, आप करें बात थैला साहब। फरीद साहब, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाना चाहता हूँ, इसका तरीकेकार क्या है? ओ, यानी आप अपनी जिंदगी पर किताब लिखवाना चाह रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। बात तो अच्छी है, कई एक्टरों ने लिखवाई है, मगर इसका तरीकेकार क्या है? यार तरीकेकार क्या है? किसी राइटर को मिलो, उससे कहो कि अपनी मैं ऑटोबायोग्राफी लिखवाना चाहता हूँ, उसको वक्त दो और लिखवा लो। वैसे आसान तरीका तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी का ये है, ये बताओ। कि कोई भी किताब लेके ना उसे 2 हफ्ते तेल में पियूं दो तो वो बन जाएगी तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी। क्योंकि तुम्हारी स्टोरी शुरू तेल से होती है और तकरीबन आध विचकार तक तेलो तेल ही है। यार क्या फजूल बात कर रहे हो? अब वो शुरू ही यहाँ से होता है ना। मैं तेल की दुकान पे बैठता था, मेरे वालिद साहब की छोटी सी तेल की दुकान थी तो वो फौत हो गए, फिर मैं उधर बैठना शुरू हो गया। यार इस तेल का क्या ताल्लुक है परफॉर्मिंग आर्ट के साथ? नहीं तो फिर मैं क्या लिखवाऊं? मैं एक बादशाह का बेटा था, हमारी सल्तनत पे हमला हो गया, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया, हम गरीब हो गए, फिर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। देखो, जहां से तुमने ये स्टोरी शुरू किया ना, हम गरीब हो गए, वहां से तो ट्रू है। उससे पहले पहले जो स्टोरी है वो नहीं लग रही ठीक। अच्छा ये ट्रू है, उससे पहले थर्स्टी करो था। ओहो मैं अब इसे कैसे समझाऊं? नहीं यार बताओ तो सही, तुम कैसे इस फील्ड में आए? नहीं वाकई फरीद साहब, मेरी तेल की दुकान थी मुल्तान में, मैं दुकान पे बैठा करता था और एक्टिंग का मुझे शौक था। नहीं यार मुझे ये बताओ, पहला ड्रामा कौन सा किया? पहला ड्रामा 78 में दौलत की दहलीज पर। अच्छा। लो मेरी पैदाइश से पहले की बात है ये। और अभी आपने मुझे नौजवान कहा तो उस पे कहता है जी इस पे हमारा एहतजाज है। 78 में इसने ड्रामा किया। माफ करना, जब मैं 90 में मैं लाहौर आया था ना तो आप बुजुर्ग हो चुके थे। मेरे जितने लड़के आपके घुटनों को हाथ लगाते थे। यार मैं साथ उस वक्त कान टूटा भी था, इसलिए मेरे घुटनों को हाथ लगाते थे। अच्छा यार उसे बताने दो। अच्छा थैले, लाहौर में पहला ड्रामा कौन सा था? लाहौर में जी पहला ड्रामा 1990 में लाहौर बाई नाइट।
जी हाँ, ये मैं पहले भी सुना चुका हूँ इसकी आमद जब लाहौर हुई थी। अच्छा। हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं असद नज़ीर साहब, सीनियर हमारे। अच्छा। अमेरिका काफी देर गुजार के सुने, आजकल फिर पाकिस्तान आए हुए हैं। तो वो इसे लेके आए थे और उन्होंने बड़ी हाला की कि एक आर्टिस्ट आ रहा है मुल्तान से, ओए होए होए होए, इतना तेज, होए 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 होए। फिर जो आया तो इतना तेज। अच्छा मुजफ्फर, तुम मुजफ्फराबाद के हो, तुम लाहौर कब आए? सर मैं वैसे तो 2016 में आया हूँ लाहौर में, लेकिन मेरा पहला ड्रामा जो वो 2022 में था, मौला जाट ड्रामा। जी, मौला जट में इसने गंडासे का रोल किया था। बतौर इंसान कौन सा पहला ड्रामा? यार उसमें इंसान का रोल ही किया था, ड्रामा शुरू ही मुझसे होता था। बनता ही तुमसे है, चूंकि तुम ही अलफ हो। अच्छा, यानी पहला थिएटर ड्रामा था जी। टेलीविजन ड्रामा अब तक नहीं किया? नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब आप हमारे साथ हो, हमारे शो का हिस्सा हो। हाँ। सर कोई ब्रीक तारों वाला टीवी मिलेगा तो उसमें ये ड्रामा भी करेगा। अच्छा गौरी साहब, आप बताइए आपका पहला ड्रामा कौन सा था? हाँ जी। जो पहला था। तो यार ड्रामे का नाम पूछ रहा हूँ, थिएटर ड्रामा था, टीवी ड्रामा था, किस सन में था? अकबर राय साहब उसके राइटर डायरेक्टर थे जी। और वो ड्रामा था ओपनर बागेजना में। नाम था उसका ही रांझा इन ट्रबल अच्छा। और सन था 1988। वाह। 1988। जी 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 जी, उससे पहले ये जिन्न होता था। 88 में ही इसने इंसानी रूप धारा है। तो फिर अकबर राय साहब बड़े माशाल्लाह बड़े मेहनती और बहुत बड़ा नाम हुआ है वाकई। अच्छा। ओ हो, बहुत मेहनती आदमी थे और वो अपनी दुनिया बसाए हुए थे। वो सबसे अलग थलग अपना ड्रामा करते थे और हर काम ड्रामे का वो खुद करते थे। अच्छा। उन्होंने फिर कोई ऐसा मंत्र पढ़ा है कि इसको इंसान बना के तो ड्रामे में काट दिया, यानी काबू कर लिया जिनको। ये काबू कर लिया इसे। अच्छा गोगा जी, आपका पहला ड्रामा कौन सा था? देग मेरे पीर दी। ओ भाई मेरे, वो फिल्म थी पग मेरे वीर दी। और यार वो हबीब साहब की फिल्म थी। हाँ जी। गोगे की पहली फिल्म थी देग मेरे पीर दी। अब भाई मैंने पहली फिल्म नहीं की, थिएटर ड्रामा किया हुआ है। ओ यानी तुम एक्टर हो? पुलिस और मैं पुलिस किससे डरता? ओके, तुम्हारा 8 में आना ही शुरू में। आई एम सॉरी, मैं और इतने सामान नहीं लेके आया, मैं आर्ट का ही काम कर रहा हूँ। सॉरी गोगे, तुम आर्ट का नहीं, तुम आटे का काम करते। प्लीज साहब, ये मेरी बायोग्राफी पूरी नहीं होने देंगे। तुम्हारी बायोग्राफी ऐसे पूरी हो ही नहीं सकती जितनी देर तुम्हारी बायोग्राफी में 2.5 किलो गोश्त ना पड़े। आप पहाड़ों में चले मेरे साथ। यार मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ कोई। तुम पहाड़ों में ले जाना चाहते हो तो कोई छतरा ले जाओ, साथ उसको वहां चराते भी रहना और खुद भी एंजॉय करते रहे। अच्छा यार, अपना पहला ड्रामा बताओ, कौन सा ड्रामा था, किस सन में था? मेरी फनी जिंदगी में बड़े उतराव चढ़ाव आए हैं। नहीं, ये बकवास कर लो हटेगा। चढ़ाओ पहले ही सन, उतराओ जेड़े ने ਇਹਦੇ वजन ना लाए। सीधा ड्रामे का नाम बताओ तुम, किस लिए खामखा आगा ताली साहब बन गए? तुम्हारे मुंह पे ये सूट ही नहीं करते लफ्ज। मुझे सभी ठुकरा देते थे। यार ठुकरा देते हुन तेनू केड़े हार पांदे ने। अगर आज सच्चाई का मौका मिला तो मुझे सच बोलने दो। बोलो बोलो सच बोलना चाहना हो एडा तू वली खान। यार ड्रामे का नाम बताओ गोगे जी। ड्रामे का नाम भी बताऊंगा और उस मोशन का भी ओ यार सेगमेंट टाइम कम है यार, बताओ यार। यार बता रहा हूँ अब। तो बता दो ना ये क्या क्या कर रहे हो। सेगमेंट का नाम भी बताऊंगा और ड्रामे का नाम भी और उस मौसम का नाम भी। दुखती आंखों बहते कानों रक्षी और क्या नाम था ड्रामे का? बकवास करें। यहाँ क्या बताएं आप? यार तो आप बताओ ना। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, उसको याद ही नहीं है। वो बेचारा इसलिए इधर उधर खजल हो रहा है। लेकिन याद है मुझे सब कुछ। यार तुम हमें सिर्फ घुमा रहे हो, तुम हम सबको मिलके घुमा रहे हो। मुझे चांस दिया था स्टेज पे ताया फखरी साहब ने। लो, यानी वो ड्रामे का नाम पूछ रहे हैं। ड्रामा भी उन्हीं का था, जागते रहना। और इन्नी सारी गल सी जेड़ा 5 घंटे ने लाए। सीधा कहो जी जागते रहना जी। फखरी अहमद साहब का ड्रामा था, बात खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात। यार तुम विग उतार लो, तुम्हें सब याद आ जाएगा।
अजीजी, तुम गोगे की जान छोड़ो, अपना बताओ तुम्हारा पहला कौन सा ड्रामा था? मेरा पहला ड्रामा 1980 में गुजरांवाला में था, रुपए का पुजारी। अच्छा। जी हाँ, उसके राइटर डायरेक्टर थे शायद इजाज साहब। हाँ हाँ। उसके बाद लाहौर में पहला ड्रामा था मेरा, जमाला थे कमाला। अच्छा। वो था 1981 में। उसके राइटर थे जुल्करनैन हैदर साहब और डायरेक्टर थे मरहूम फखरी अहमद साहब, उस्ताद मोहतरम। तो जी टीवी हाँ, पे तुम्हारा ऐनी सारी गल हुंदी है। मैं अभी आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव भी बताऊंगा, मेरी जो आंधियां चली हैं जिंदगी में, खून आशाम आंधियां, उनका भी मैं जिक्र करूंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं किस किस दरबार का लंगर खा के जो आन हुआ हूँ। तो यार गोगे, तुमने इतना जिंदगी में परफॉर्म नहीं किया जितना बताने में देर लगा रहे हो तुम। भाई जब मौका मिल जाए तो देर लगानी चाहिए। गोगा पैकअप। अच्छा जिया, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप पहली मर्तबा किस स्क्रीन पे नजर आई? सर मैं एक निजी न्यूज़ चैनल पर खबरें पढ़ती थी और प्रोग्राम मेरा सबसे पहले हस्बे हाल है जहाँ पे मैं नजर आई। जी हाँ, उधर से इसको पता नहीं किसी ने कोई जुगत किया, फिर ये हंसती हुई घर जा रही थी। हमारे प्रोड्यूसर राणा शान को नजर आ गया कि यार है बाबा शुदैन जी है। अच्छा मीरब, आप तो आर्टिस्ट हैं, जी। आपने सबसे पहला काम कहाँ पे किया? सर मेरा सबसे पहला ड्रामा मोची गेट था, उसके बाद से मैं हस्बे हाल में। चले अच्छी बात है, मुझे सबके बारे में पता तो चला कि आप सब लोगों ने अपने अपने कैरियर का आगाज या स्टार्ट कैसे किया। फरीद साहब, आप हस्बे आज से पहले डॉक्टर थे? गौरी साहब, मैं एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूं और इससे पहले मैं न्यूज इन करंट अफेयर्स चैनल के अंदर करंट अफेयर प्रोग्राम्स करता था। मैं बिल्कुल, मैंने आपको इतने इतने पानी में मैग पकड़ के फिरते हुए देखा है। वो माइक नहीं था, वो पानी में से इनको डड्डू मिला था। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, गुफ्तगू एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान या तो किसी के दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।